On this Occult Healer session, we welcome all our attendees and respected guests. Nipiksha, over to you, and we can start the program now because it is going to go Facebook Live as well. We normally try to invite all the Corona patients. Today we had 12 people with us. And, Again, I am repeating, those who want to take the healing, please raise your hand so that I can promote you to the video level and you can take the healing directly from Amit sir. Sir, if I see anyone raise hand, I will promote them to video session in later on. Sure. Okay. For healing, basically, there are a few things required. Whoever is receiving this energy healing, yes, sir. Amit sir is a Nath healing. He give the healing cosmically energies, give the energies to the persons. His meditation process, his healing session continuously going on, and he taken his precious time for us to come up with us by hearing that we are giving a free sessions to every to Corona patients on a public platform. After hearing all this, he easily get ready to come up. Thank you, Amit sir, for coming and on thanks for giving up an opportunity healing platform. So over to you, sir. Thank you so much for giving an opportunity to serve people. Those, we all are soul after all. Whatever we can contribute in this pandemic time, we must do it, no matter who are ready to receive or not. See, the soul has decided to serve where, in which conditions, to whom. See, these all parameters are fixed. We cannot change. So the journey here to serving people was decided. That's why I'm here. So I cannot do anything. I don't do anything. It's like God's energy, which I'm channelizing, just shifting one place to another place. That's it, with a certain methods. You can proceed with your session. Others are getting it indirectly, and one of the Corona patient we have. I remember one of the stories during while I'm intervening, I have to say sometimes that healers may feel like only few numbers of people have come. Doesn't matter, even a single person is there. We'll carry on with this mission and session. Yes, of course. And because each soul, each person, then their life is precious, and we feel so. And we heartily welcome you on this platform. Please proceed your healing session. Yeah. Okay. Anyone still want to take the direct healing from Amit sir? Please raise your hand. I will promote you to the video level. So, okay, later we can continue. I think we can. See, let us first understand why this situation came. I don't know about this in a deep, but yes, how we can deal and why we have failed in any circumstances. See, the most expensive thing in the world is air. We don't value it unless need it. When do we need it? When the electricity is gone, power is gone, we feel hot, we can't sleep. And anything, everything is connected with the universe. So, due to this pandemic situation, most of the patients get affected on the lungs, their respiratory systems, kidney. As for like I'm healing so many people, so I have a little awareness. What the discomfort comes. Through the medication, yes, we can fix some sort of problems, physical aspect, but not the mental aspect of the human being. What is mental aspects? There are something. We have a 3 phase of life: child, young, and old. In a child, what we do, we learn and grow. In young, we earn and save. And the old age, we take care of our health or relatives. That's the life is. So in a childhood, whatever things are happening, you don't try to save it, just move on. But when you grow,
there are a lot of things which get attracted, a lot of things get stored in your brain because of clear sense. Clear sense is what you see, something is recorded in your mind. In terms of belief, what you hear, that get recorded in your mind and becomes belief. So your belief systems should be strong rather than looking for a solution. Solutions is in every patients within themselves. They have to control on the breathing system, and they have to release their negative thoughts. What are the negative thoughts? इतने लोग यहाँ मरे, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोगों को बेड्स नहीं मिला. I feel very sorry when somebody doesn't get oxygen on a time, so they could have at least survived. But everything, as I said, is connected and everything is decided. We all can take a precaution. We all can try to balance our energy. कैसे करेंगे in COVID time? Before the COVID, this is for those who are having a COVID positive test and suffering from this particular problem. They all have to focus on their breathing systems, जिसको हम life force कहते हैं, which is globally essential for everyone and most expensive thing. तो inhale and exhale करने से आपकी breathing, आपकी सबसे पहले आपके thoughts control होते हैं, because your focus is on breathing, on air, where it is coming from and where it is going. So when we inhale, we take a positive energy within us. When we exhale, we release a negative energy. So by doing this practice, we control our mind, and mind comes on a zero level thoughts, no thought state. When it comes on a no thought state, and you are sitting in a posture like when you sit on a chair, your leg should not be crossed. For this particular meditation, which I'm guiding, cosmic energy meditation. Amit ji, may I request we can use both the language, because some messages I received both the language. All right. तो जब हम करते हैं मेडिटेशन, तो कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन में बेसिकली होता क्या है, हमें चेयर पे बैठनी होती है. हियर वी डोंट ट्राई टू ब्रेक द एनर्जी का फ्लो, तो हम उसको चेयर पे बैठ के करते हैं. देयर आर एन नंबर्स ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन. कुछ बैठ के भी होती हैं, कुछ आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं. बट मेरी जो मेथड्स है, वो मेथड्स में मैं चेयर पे कहता हूँ, या सोफा पे किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपने स्पाइन को इरेक्ट रखें, स्पाइन को, क्योंकि ये जो स्पाइन है, इसके थ्रू आपकी एनर्जी रिसीविंग होती है. तो जब आप स्पाइन को इरेक्ट रखते हैं और फेस को पैरेलल रखते हैं, हैंड को अपवर्ड्स रखनी होती है ना, रिसीविंग. जैसे हम कुछ चीजें ले रहे हैं यूनिवर्स से, कुछ हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम कनेक्टिंग में रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं क्रॉस में. क्रॉस का मतलब होता है एनर्जी ब्रेक होना. हमें एनर्जी को ब्रेक नहीं करना होता है. पूरी की पूरी जो यूनिवर्स से आ रही है विद द इनहेल एक्सेल और विजुअलाइजेशन, वो हमारे शरीर के अंदर सारे नेगेटिव एनर्जी को और सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दे, ये हमारा ध्यान रहता है. और अर्थ, पैर आपका फ्लोर पे टच होनी चाहिए, योर लेग शुड टच द फ्लोर. So we get a connectivity from the Mother Earth, which is most important. No one says thank you, Mother Earth. No one says value the earth. Everybody is destroying the natures, digging here, throwing any wastage here and there, spoiling the whole society. तो ये अर्थ से कनेक्टिविटी मिलती है. तो क्या होता है, जब हम लाइट्स को डाउनलोड देते हैं, मतलब रिसीव करते हैं थ्रू द विजुअलाइजेशन, तो ये आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को ईच एंड एवरी सेल से निकाल के आपके अर्थ में जाके वो ग्राउंड कर देती है. दिस प्रोसेस हेल्प्स यू टू बैलेंस द होल सिस्टम ऑफ एनर्जी, जिसमें चक्रास बैलेंसिंग होती है आपकी. और अगर लंग्स में कोई ब्लॉकेज है, या इफ देयर इज एनी क्लटर, जिसके कारण से आप नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, तो वो भी इजिली आप ले पाते हो. The one has to do 7 times inhale and exhale. The first inhale and exhale का जो प्रोसेस है, वो 15 सेकंड का ड्यूरेशन कम से कम होना चाहिए. 15 सेकंड इनहेल करने का मतलब है कि पूरी सांसें आप 15 सेकंड के अंदर भर लें, और उसके बाद जब आप रिलीज करते हो, तो यू आर रिलीजिंग नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जी. तो आप उसको स्लोली पूरी तरह 15 to 20 सेकंड में नीचे जाने दें, मतलब पूरी खाली कर लें. इसमें होता क्या, मैं चूंकि लोगों को गाइड भी करता हूं और ट्रेनिंग भी देता हूं, तो कई बार देखा हमने
दिक्कतें क्या आती है, सब कुछ सुनेंगे बट नोबडी विल फॉलो द स्ट्रिक्टली जो हमने गाइड किया, तो वो जल्दबाजी में रहते हैं कि ओके ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपके माइंड के ऊपर आपको कंट्रोल पाना है, नो थॉट स्टेट में आनी है, बहुत सारे नंबर ऑफ थॉट्स चल रही है, तो इनहेल एक्सेल प्रॉपर्ली स्लो मोशन में करने से आपकी जो थॉट्स हैं वो थॉट्स बैलेंस होगी, उसके बाद आप एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। तो 7 टाइम्स इनहेल एक्सेल करते हैं, लाइक with the closed eyes, hands upwards, spine erect, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और सांस लेते धीरे धीरे। जब आपका 7 टाइम्स इनहेल एक्सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको यूनिवर्स को कहना होता है। दैट मीन्स कि 7 इसलिए क्योंकि 7 मिस्टिकल नंबर है और कनेक्टिविटी के लिए हमें वो नंबर्स का ही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप मन ही मन आपको बोलनी है क्रिएटर मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण में क्रिएटर्स का निस्वार्थ प्यार डाउनलोड कर दी जाए। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्रिएटर आई बी डाउनलोडेड विद क्रिएटर्स व्हाइट लाइट इनटू ईच सेल ऑफ माय बीइंग, थैंक यू। जैसे ही आपने थैंक यू बोला, कॉस्मिक एनर्जी आपके टॉप ऑफ द हेड से यहाँ पे क्रॉन चक्रास प्लेस है। चक्रास 7 है आपके बॉडी में, क्रॉन चक्रा टॉप ऑफ द हेड से आपकी एनर्जी व्हाइट लाइट व्हाइट फॉर्म में, अगर आप स्काई की तरफ देखोगे तो वहां पे सिर्फ आपको व्हाइट लाइट दिखाई देगी। वो व्हाइट लाइट कॉस्मिक एनर्जी है, ईश्वरीय ऊर्जा है, वो डाउनलोड शुरू हो जाती है। और जैसे आप इसको विजुलाइज करते हो कि ये रिसीव हो रही है, ये धीरे 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 आपके शरीर में स्लो प्रोसेस में आप इसको जाने दें, हर एक ईच एंड एवरी सेल्स में इसको इस एनर्जी को पास ऑन होने दें, ताकि जो भी डेड सेल्स होंगे उसको भी ये रिप्लेस या रिपेयर करने में, वहां तक एनर्जी पहुंचाने में मदद करेगी और सारे ऑर्गन्स को आपके बैलेंस करने में मदद करेगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करने में मदद करेगी। तो इस एनर्जी को धीरे धीरे व्हाइट लाइट को विजुलाइज करें कि पूरी बॉडी से होते हुए ये स्लोली पैर के रास्ते से मदर अर्थ में जा रही है। जब मदर अर्थ में जा रही है तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम और डीप जाने देना है मदर अर्थ में, ताकि ये एनर्जी पूरी तरह से प्योर हो जाए। दिस शुड गेट फिल्टर्ड एंड प्योर। जब ये प्योर हो जाए मदर अर्थ में जाने के बाद, तो आपको यहाँ पे मदर अर्थ को थैंक यू बोलना है, बिकॉज यू आर अगेन यू हैव टू टेक अ प्योर एनर्जी फ्रॉम द मदर अर्थ, मदर प्लेसिंग, थैंक यू मदर अर्थ, लव यू मदर अर्थ। हियर यू हैव टू विजुलाइज, आपको विजुलाइज करनी है कि पैर के रास्ते से एनर्जी, व्हाइट लाइट एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा, मदर अर्थ जो आपको दे रही है, ये स्लोली 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 आपके ऊपर आ रही है। और ये एनर्जी जब आपके सेंटर ऑफ द हार्ट तक आ जाए तो यहाँ पे प्लेस इट प्लेस इट प्लेस इट 3 टाइम्स बोल के इस एनर्जी को आप स्टोर कर लें। और उसके बाद 3 बार आपको कहना है इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे यू विल फील द रिलैक्स माइंड, body and soul, and difference from the previous and current conditions. If you do it twice in a day, this will hardly take 180 seconds, max 300 seconds. और इतने करने मात्र से आपके शरीर के सारी की सारी
टॉक्सिन्स निकल जाती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। हर एक चीज जो आपके शरीर में है, जो आपके शरीर को फिजिकल या इमोशनल वे में डिस्कम्फर्ट दे रही है, वो एनर्जी है। हमारे थॉट्स पे कंट्रोल करना है, क्योंकि थॉट्स के हिसाब से ब्रेन केमिकल रिलीज करती है जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारे बॉडी को सरवाइव करने में मदद करती है, बैलेंस करने में मदद करती है। जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स है हमारे 5 तत्व जो नेचर से कनेक्टेड है। 5 तत्व में एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस। अगर आप इस एलिमेंट्स को बॉडी के अंदर फील करें तो ये एनर्जी आपके नेचर से सिंक्रोनाइज होती है, और इतना करने मात्र से आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो जो चीजें आपकी ऑब्स्टिकल्स बन रही है वो ईज होना शुरू हो जाएगी। जहां कहीं भी आपको मौका मिले, कहीं भी किसी भी टाइम में आप ये कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। इसे हर कोई 2 बार जरूर करें। इतना करने मात्र से यू विल फील द डिफरेंस। इसके अलावा हमें अपने थॉट्स पे कंप्लीटली कंट्रोल करनी होती है। और खास करके कोविड के टाइम में जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं या फिर किसी अदर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बन जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है कि पता नहीं मुझे कोविड हो गया, अब ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, अब मुझे मेडिसिन मिलेगी कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल में बेड मिलेगी कि नहीं। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जब कभी भी सोचते हो या बोलते हो तो चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे एनर्जी फील्ड बनती है जिसको हम कहते हैं ऑरा। आपकी ऑरा डिस्टर्ब होती है इससे, और आप उसको, ब्रेन को पता नहीं है, आपके थॉट्स जो चल रहे हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे आपने ये डाउनलोड दी, प्योर हो गई आपकी एनर्जी, मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। तो जो आप सोचते हैं वो ऐसा होता है। तो अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखें। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही किसी भी चीज को लेके, तो एक पेन पेपर लेके आप पहले अपने थॉट्स को, जिस चीज को लेके आपको फियर है, वो फियर आप सारे एक साथ में लिख लें। फिल अप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितने आपके फियर है, जिस चीज से रिलेटेड, उस फियर को आप लिख दें। और लिखने के बाद आपको उसे बर्न कर देनी है, देखने के बाद कि आपने क्या लिखा। जब आप बर्न करते हो तो ब्रेन में एक रिसीविंग आ जाती है कि हमने इस चीज को डिस्ट्रॉय की। जो आपकी एनर्जी फील्ड में थी वो एनर्जी फील्ड से ये रिलीज हो जाती है। ये एंजाइटी, जैसे पोस्ट कोविड एंजाइटी की इश्यू होती है, या एंजाइटी कन्वर्ट होता है फिर डिप्रेशन में, तो इसमें भी मदद करेगा ओवरऑल। टाइम चूंकि काफी कंस्टेंट है, बहुत कम है इस समय, मैं आपको ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूँ। You ये may थी proceed, व्हाइट लाइट। Amit sir. We have sufficient time. Don't worry. You have come ओके to us. ओके Please take ओके your time. Please take your ओके ओके। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपके नेचर पे आपको कंट्रोल करनी होती है। आपको रिएक्ट नहीं करना होता है। आपने एनर्जी गेन कर ली, आपके सारे चक्रास आपके इससे बैलेंस हो गए, आपके अंदर से नेगेटिविटी चली गई, immediately you will feel relaxed and calm. How you are feeling, sir? Raghavendra sir, how you are time. feeling? I am feeling great. Today's thing is totally different. Yes. So whatever the practice you do, if you do it with the pure heart, like receiving mode 100%, it's going to work like a miracle. और अपने सबसे पहले हमारे बिलीफ सिस्टम्स को टुकड़े टुकड़ों में ब्रेक करके, which gets stored unwanted. Something is useful and something is like kind of clutter which keep bothering you. ये तब होता है स्पेशली जब आपको कुछ चीजें सराउंडिंग्स आपको पॉजिटिव नहीं मिलती है, या 3 चक्रास आपके ब्लॉक होते हैं, रूट चक्रास, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड सैक्रल चक्रास। तो रूट चक्रास ब्लॉक होते ही आपको इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी किसी भी चीज को लेके हो सकता है। सपोज अभी के समय में मैं बताऊंगा, सबको एक ही चीज की इनसिक्योरिटी है कि हाय मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोविड ना हो जाए। तो बार बार हम इस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, कोविड ने। वी टेक अ प्रिकॉशन। आप जो कर सकते हैं वो लीजिए, हैंड वॉश करनी है, मास्क लगानी है, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। बट इससे अगर आपको डर है तो उस डर को आप सबसे पहले अपने
पीस ऑफ पेपर लीजिए, पेपर पे लिख के उसको बर्न करिए, क्योंकि ये फियर हट जाएगी तो इस चीज को आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो लोग लकी हैं जिसको फियर नहीं है, वो कोविड के चपेटे में नहीं आएंगे, कोविड उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता कि कोविड किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए है, कोविड इन जनरल सबके लिए है, बट कोविड से प्रिकॉशन लेनी है हमें, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, हम अपने सांसों पे वो कंट्रोल रखनी है। एक्सरसाइज, आफ्टर ऑल क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, फिर नेक्स्ट लेवल वेंटिलेटर पे डाल दी, ऑक्सीजन नॉर्मल हुई तो 7 डेज में आप घर पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं है तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो हम क्रिटिकल कंडीशन में ना जाएं, ट्राई करें कि अपने थॉट्स को, सराउंडिंग जो हो रही है वहां पे एनवायरनमेंट, उसको सबसे पहले आप ब्रेक करें। अब बहुत जब हॉस्पिटलाइज होते हैं वहां तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उनके बिहाफ में कोई उनके रिलेटिव्स लिख के दे सकते हैं ये बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने के लिए और बर्न कर सकते हैं। अगर कोई होम क्वारंटीन है और जरा सा भी कुछ जैसे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कफ है, फीवर है, तो उस टाइम इमीडिएटली सबसे पहले जितने फियर्स हैं सारे फियर्स को आप लिख दें कि मुझे डर है कि मुझे हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेगी, मुझे डर है कि मुझे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, मुझे डर है कोविड हो गया तो मैं रिलेटिव्स को नहीं मिल पाऊंगा। दीज आर द फियर्स अट्रैक्ट दिस सिचुएशन, और आपको ये फियर से बाहर आनी है। एम आई राइट? आप एक बार करके देखिए, यू विल फील डिफरेंस। मैं सिर्फ कहता नहीं, मैं सॉरी, I'm saying people are directly doing so. I'm getting messages. Yes, they're enjoying and they are getting benefit. Oh, great, lovely, lovely. And I'm thankful to all the soul who are connected here today, and they are giving opportunity to share my experience. So far, every day I'm handling critical conditions of COVID patient every day. और मेरा विजन है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयर करा पाऊँ, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही चीजें हैं। तो जब प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके पास। और नेचर हैज अ पावर टू हील योरसेल्फ। आपको कहीं बाहर से किसी सपोर्ट की लेने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। अब क्या होता है कि जब कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अगर किसी डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी और आपकी बीमारी को उसको लगा कि एक मेडिसिन काफी है, तो आप ट्राई करते हो नेक्स्ट डॉक्टर, ये डॉक्टर सही नहीं था। तो दिस इज द बिलीफ सिस्टम व्हिच इज बीन स्टोर्ड इन अ माइंड, एंड ऑन दैट बेसिस आपके मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो हमें सबसे पहले बिलीफ सिस्टम रिलीज करना है, सॉरी, बिलीफ सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करनी है। कैसे? पीस ऑफ पेपर में लिख के बर्न करनी है, लिटरली बर्न करनी है। उसके बाद इनहेल एक्सेल जो मैंने बताया 7 टाइम्स आपको कंटिन्यूटी करना है। इनहेल एक्सेल करने के बाद विजुलाइज करनी है कि अबंडेंस में, यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। वो एनर्जी को हमें ड्यूरिंग द स्लीप वी आल्सो गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी बाय डिफॉल्ट। जब भी आप थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको सबसे पहले नींद आएगी, या कोई भी इंसान बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर की पहली कोशिश होती है उसे स्लीपिंग मोड में ले आना। स्लीपिंग मोड में इसलिए ले आना क्योंकि बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली बना हुआ है ऐसा कि यूनिवर्स जिससे जो है ना वो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना शुरू कर देता है। आज के जनरेशन में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लाइक जो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, या यूं कह लें कि जो एनर्जी को अनबैलेंस करती है। हियर आई विल नॉट टॉक अबाउट द वास्तु एंड सम अदर स्टफ, बट दीज आर द एविडेंस जो हम सबको पता है। प्लस वी बिकम लेजी, हम लोग ना मसल्स को टोन करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, रादर लाइक इंटरनल जो मैकेनिज्म है अंदर सेल्स को, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ब्रेन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको जरा सा भी डेंटल इश्यू हुई तो यू शुड बी केयरफुल, बिकॉज डेंटल आपको आपके जो अंदर बैक्टीरिया वो जाएगी और फिर बाकी सब हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करना शुरू कर देगा। तो दीज आर द स्मॉल थिंग वी डोंट फोकस, वी आर बिजी इन लाइक ग्रोइंग फॉलोइंग पीपल। लग्जरी गाड़ी किस काम के? आपके फेरारी भी अगर आपके पार्किंग में अभी पार्क है तो किस काम के हैं आप बताइए? फॉर व्हाट यू आर रनिंग, फॉर व्हाट यू आर लिविंग, इज दिस अ लाइफ? For what you are not helping others? Savings, what your savings? Save others. तो जब आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और दूसरे की थोड़ी मदद करेंगे,
तो यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बनेगी और वहां पे आपको अबंडेंस में ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। वो ब्लेसिंग्स मात्र से आपकी ऑटो हीलिंग रास्ते इजी होने शुरू हो जाएंगे। आपको हर चीज इजीली अवेलेबल होना आपके आसपास शुरू हो जाएगा। अदरवाइज मुझे सुन के बहुत दुख होता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति एक यू नो एम्बुलेंस में जा रहा होता है, क्या हुआ, कोविड हुआ या उनको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। अभी तो सारे बीमारी बंद हो गए, सिर्फ एक कोविड ही आई और कोई डेथ होती नहीं है। ऑल कम्स अंडर द वन रूफ, कोविड। अब ये कोविड से हमें लड़ना है, कोविड से हमें डरना नहीं है। डर के कारण कोविड से मृत्यु होती है। जो जिन लोगों की भी जान गई, मैं उन सोल को प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उन्हें व्हाइट लाइट प्रोवाइड करे, उनको विंग्स दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। वो उनकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से होती है। सबसे क्रिटिकल और डेंजरस जो डिजीज है वो है कैंसर। कैंसर से लोगों की मृत्यु नहीं होती है बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ बिलीव वी हैव कैंसर की ट्रीटमेंट है और कीमोथेरेपी से ये कैंसर सेल्स को डैमेज किया जा सकता है। तो वो सेल्स को डेवलप होने से रोक दिया, आपके नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर दी। क्या एनर्जी है यहाँ पे, कुछ अगर मुझे ट्यूमर जैसा हो गया, मेरी थॉट्स यहाँ पे जाएगी बार बार, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना हमें दर्द कर रही है ना कुछ कर रहा है, बार बार हमारे थॉट्स वहां जाएंगे, ये क्या हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, ये क्या है, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ये आपके थॉट्स जो है ना यहाँ पे, ये एनर्जी के रूप में यहाँ पे जा रही है। तो जब एक्सेस एनर्जी आती है किसी भी पर्टिकुलर सेल में, तो वो एक अपना सेल डेवलप करना शुरू कर देता है। कैंसर सेल तो अंदर ही है, बाहर से नहीं आती। कोविड मैं कह सकता हूं कि बाहर से आ रही है। इसके चपेट में कौन आएंगे, जो लोग प्रिकॉशन नहीं लेते। हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। और हमने अपने थॉट्स को स्ट्रांग करके रखें, आसपास में भी सराउंडिंग में उनको मोटिवेट करके रखें। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप सभी शेयर करें कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करें। सबसे पहला जो माइंड है वही एनर्जी है, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है। ये पार्ट खत्म। अब ब्लाइंड डम एंड डीफ आदमी को क्यों नहीं कोविड होता। अब कोई अंधे आदमी को कोविड क्यों, सुने होंगे कि किसी को हुआ है, हुआ भी होगा तो शायद पता नहीं होगा, क्योंकि उनको कौन सहारा देगा, उनको कौन टेस्ट करवाएगी, उनके पास तो पैसे भी नहीं होते। तो कोविड किसको हो रही है और क्यों हो रही है। अगर हम अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लें, सांस पे कंट्रोल कर लें, हमारी लंग्स प्रॉपर रहेगी, तो कोविड अगर होगी भी तो उससे लड़ेगी। हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ऑटो इम्यून सिस्टम है जो सफिशिएंट है उससे फाइट करने के लिए। Am I right or wrong? Absolutely right, Amit ji. Or I must say that people are getting benefit, and people have experienced the live benefit of this session, a wonderful session you have conducted. I really feel sorry about like those who have got you know low oxygens and on a ventilator. You're मैं right. खुद हीलिंग कर रहा हूँ, मुझे उनके फैमिली को सिर्फ मोटिवेट करके रखना होता है कि आप डरो मत, क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो प्रूफ हो गई जी. कि apart from spiritual way, you There is no don't have other. any other way to save your Right. life. And that's why we are gathered today, because Amit Yes, ji, we it's have a got proven. we have got one senior person, Javin Jain ji, with us. Oh, I'll take up. namaste sir, He's namaste sir. known for the Bhaktamar healing. We have Neha ji with us. Neha ji, could you just come up on the video, please? Neha ji is another healer we have. Hello. It's the second time we have invited her because a lot of Wow, public all happy demand. souls. Wow. Yeah. And Great. I must say that good people connected, positive people are connected with the occult healers, and they are giving their, I must say, the unconditional services to the humanity. Thank Okay, you let very me, much. Yes. those whoever connected right now, let me give some sort of energy. Let me send the energy to ease their pain and feel them very comfortable. I didn't do that initially because we were only 3 people, so I thought, okay, they So must. there are 20 people, sir, 20 here, and the Facebook Live, hundreds are already Okay, connected. unless I don't visualize, I cannot give send them. But yes, जो हमारे सामने है उनको तो मैं दे दूँ. I'll take a 30 second of time. Yes, yes, please.
Thank you so much for receiving energy and happy soul. I'm really thankful to whoever, Sumit ji, thankful to one of my colleagues who has organized this and given opportunity to share my experience. मैं तो रुकने वाला नहीं, बट मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? Absolutely right, sir. बहुत अच्छा आपका। आप रिसीव नहीं करेंगे तो मैं कैसे दूंगा? Right. तो रिसीव करने के लिए आपको आगे आनी पड़ेगी, आपको दूसरों को जो आप ले रहे हो फिर उनमें बांटनी पड़ेगी। इट्स लाइक काइंड ऑफ प्रसाद, जो यूनिवर्स से मिलती है वो प्रसाद ही है, फ्री में मिल रही है, इसका कोई वैल्यू नहीं देता। जिस दिन हमारी सांसें डिस्टर्ब होती है उस दिन इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि हाउ एक्सपेंसिव द एयर इज अनलेस वी डोंट वैल्यू इट। एब्सोल्युटली, है ना? बहुत अच्छा सर। अमित सर, मैं गुजारिश करूंगा आप रुकिएगा क्योंकि बाद में क्वेश्चन आंसर भी आने वाले हैं। और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। यस जैन साहब कुछ पूछ रहे हैं, जैन साहब का क्वेश्चन मैं लेता हूँ सर। यस सर। एक्चुअली नेहा जी हैज अनदर सेशन आफ्टर दिस, so I'll be requesting you to be here and there will be other questions also be coming up. No problem. नेहा जी, प्लीज स्टार्ट योर सेशन। कोलकाता से हैं और दूसरी बार हमारे बीच आ रहे हैं, काफी पब्लिक डिमांड है इस वजह से आपको बुलाना। मैं तो कहता हूँ हर हीलर को दोबारा तीसरी बार आना चाहिए मेरे यहाँ पे अकल्ट हीलर्स के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक अनकंडीशनल चैरिटेबल सर्विस टू कोरोना पेशेंट और पब्लिक इन जनरल भी देना चाह रहा है। और उसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पे आने के लिए। नेहा जी, ओवर टू यू। नमस्ते सुमित जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। थैंक यू मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए, आप लोग का धन्यवाद। एंड आज हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी लेवल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करने के पहले, पिछले बार हम लोग ने ब्लेसिंग्स दी थी, हम लोग ने पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर की थी एक ग्रुप की तरह साथ में कोविड पेशेंट्स के लिए। आज के सेशन में हम लोग कुछ अलग करेंगे, हम लोग कुछ एफर्मेशंस करेंगे, कुछ प्रेयर्स करेंगे अपनी खुद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये जो प्रेयर और एफर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो हम लोग सब अभी प्रैक्टिस करेंगे, इसे आप चाहें तो रेगुलरली रोज 7 से 10 बार जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं उसको हम लोग इस पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि हर जगह हम लोग न्यूज़ देखते हैं, बहुत चीज़ें सुनते हैं, सबके फैमिली में आसपास में पेशेंट्स है, आज ऑक्सीजन कितना हो गया, तो आज कोई हॉस्पिटल चला गया, तो आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो अक्सर क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो भी वही सब विचार बनाने लगता है, राइट। आई एम श्योर मेरे भी घर में ऐसा होता है, आप लोग सबके भी घर में हुआ होगा कि अगर कोई छींक दे या किसी कोई जोर से खांस दे तो हम लोग सब डर जाते हैं, राइट। क्यों डर जाते हैं? और अपने आप मन से क्या विचार निकालते हैं कि अरे इसको कोविड तो नहीं हो गया, इसको ये तो नहीं हो गया, उसको वो तो नहीं हो गया। तो अक्सर हम लोग, क्योंकि आसपास में इतने विचार इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जैसे अमित जी ने भी शेयर किया, बहुत अच्छे से शेयर किया कि फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो हम लोग प्राणिक हीलिंग में भी सीखते हैं कि फियर में अक्सर क्या होता है, हम लोग वही विचार बनाते हैं और वो सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग वही चीज के विचार बनाते हैं जो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग फियर में, यानी कि डर में, वो सब चीज कभी नहीं सोचते जो हमको चाहिए। लाइक जैसे हम लोग सब क्लियरली जानते हैं कि हमको कोविड नहीं चाहिए, राइट, लेकिन हम लोग को ये तो सोचना होगा कि हमको क्या चाहिए, और अपनी एनर्जी हमको उसी दिशा में लेकर जानी है एज टू व्हाट वी वांट, नॉट ट्रांसफरिंग आवर एनर्जी टू व्हाट वी डोंट वांट। क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी फॉलोज थॉट्स, एनर्जी हमारे विचारों को फॉलो करती है। जैसा हमारा विचार होगा, और जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो नो शब्द का मीनिंग नहीं समझते। आप ये विचार नहीं बना सकते कि मुझे कोविड नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मुझे कोविड नहीं चाहिए, अगर मैं बार बार आपको बोलूंगी अरे मुझे कोविड नहीं चाहिए, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे कोविड नहीं चाहिए, दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं? ऑलरेडी आप देखेंगे विचार आ रहे हैं कि हम लोग हॉस्पिटल बेड पर है, मास्क लगा कर है, ऑक्सीजन लगा करके है। तो हम ऑलरेडी ये विचार बना रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होने वाली है। तो इस विचार को चेंज करने के लिए इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल कि ऐसे विचार हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि हमारे सबके सिटीज में
पूरे ग्लोब में, क्योंकि एक पैंडेमिक है जो एक ग्लोबल लेवल पे चलता है, इस विचार को फाइट करना हो सकता है हमारे लिए टफ हो, सबके विचार बदलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद के विचारों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जब भी हमारे मन में इस तरह के थॉट्स पैदा हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीज में ऊर्जा अपनी इन्वेस्ट करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ पुटिंग आवर एनर्जी इन दिस, वी कैन डू समथिंग टू पुट आवर एनर्जी इनटू समथिंग मोर पॉजिटिव, something which can heal us, something which can replenish our energies. Okay? तो मैं एक affirmation, एक प्रेयर अभी शेयर करने वाली हूँ। ये प्रेयर मास्टर चौकॉक्सवी की बुक से है जो हम प्राणिक हीलिंग में सीखते हैं, ये कोर्सेज हम लोग पढ़ाते भी हैं और ये पेशेंट्स को भी दी जाती है, अक्सर हम लोग अपने आप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स हमने मॉडिफाई किए हैं, कुछ वर्ड्स मॉडिफाई करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, स्पेशली अपने लंग्स के लिए, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो आप लोग सब रेडी हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए साथ में? Yes, 100%. Yes. So let's practice something. This so आज सुमित जी हम लोग खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोग ने ब्लेसिंग सीखी थी, तो वो बोलते हैं ना कर्म सिद्धांत के हिसाब से पहले हम लोग रिक्वेस्ट आई है दोनों भाषाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रिक्वेस्ट आई है। मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें मैं दोनों लैंग्वेज में रिपीट कर रही हूँ। आई होप दैट ओके। सो ये प्रेयर भी हम दोनों लैंग्वेज में रिपीट कर लेंगे सो दैट सबको क्लैरिटी में समझ में आ जाए। Alright, so let's start. शुरुआत करते हैं। Just close your eyes, एक लंबी सांस लीजिए, relax. अब आप मेरे पीछे मन ही मन या शब्दों में, verbally or mentally, you can repeat. I am the soul. मैं आत्मा हूँ. I am not the body. I'm not this emotion. I'm not this fear. I'm not this thought. I am the soul. मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये डर भी नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ एक हूँ। I am one with my higher soul. I invoke for the blessings of the Supreme God for spiritual, mental, emotional and physical healing. मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मानसिक लेवल पर मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को और मेरे शरीर को हील करते। I am clean. Let all impurities, diseased energies be disintegrated and expelled from my system. मैं स्वच्छ हूँ। मेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारे डर, सारी बीमारी की ऊर्जाएं छिन्न भिन्न होके मेरे शरीर से, मेरे ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाए। I am the soul. I am that I am. मैं आत्मा हूँ। सो हम। अब बस कल्पना करिए, imagine that we are all under a waterfall of white light. कल्पना करिए कि हम सब एक white light waterfall, एक बहुत तेज प्रकाश उसके नीचे है। ये जो white light है, ये हमारे सर में एंटर कर रही है। It is entering our head area. हमारे पूरे शरीर में जा रही है। इमेजिन करिए कि ये वाइट लाइट हमारे लंग्स में जा रही है और हमारे लंग्स को हील कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है।
माई लंग्स आर हेल्दी, मेरे लंग्स हेल्दी ठीक से काम कर रहे हैं। जिस मन में बोलिए थैंक यू। कल्पना करिए कि आप आपके लंग्स से बातें कर रहे हैं। बस मन में बोलिए अपने लंग्स को थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ ऑल दीज इयर्स। अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। जिस मन में बोलिए थैंक यू। अब इमेजिन करिए कि ये लाइट हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, हमारे सारे ऑर्गन्स में फैल रही है। इमेजिन करिए कि हम लोग अपने लिवर से बातें कर रहे हैं। अपने लिवर को कहिए थैंक यू। अब अपने हृदय को इमेजिन करिए और मन में बोलिए थैंक यू। अपने थ्रोट एरिया, थ्रोट को इमेजिन करिए और मन में बोलिए थैंक यू। अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इमेजिन करिए और कहिए थैंक यू। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इमेजिन करिए और कहिए थैंक यू। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस बॉडी। आपने मुझे ये शरीर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा शरीर मेरा यंत्र है और वो बहुत ठीक से अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू गॉड फॉर द हीलिंग, फॉर द सेल्फ प्यूरिफिकेशन। पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद। धीरे से आंखें खोलिए। आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको, कि आपको कुछ एनर्जी फील हुई, कि आपको कुछ पॉजिटिविटी फील हुई। And we have the patient with Raghavendra ji and Renu Lamba. Would want to ask Renu ji first. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, अब मैं बेटर हूँ, पहले से काफी बेटर हूँ इस टाइम। अभी मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है और अभी और बाकी वैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो गया काफी, बट मेरी वॉइस थोड़ी सी अभी नहीं निकलती पूरी, किसी टाइम एकदम दब जाती है और किसी टाइम पूरी निकलती है। बट आज मुझे बहुत अच्छा लगा हीलिंग लेकर। थैंक यू सो मच। वाओ। रचना चान्ना जी से भी आया है मैसेज, वंडरफुल वाइब्रेशन। So people really get benefit out of when such healings are done. Amit ji or Neha ji, I must convey my regards by heart. We have Raghavendra ji. Raghavendra ji. I felt great. In fact, my voice is not yet back. I'm under quarantine, and mostly I have recovered. 90% I have recovered. Great. Waiting for my voice to come back before I start singing and dancing. I have a question with Amit Verma ji. Yes, please. Today we were made to sit on the chair and without anything under the foot. Yes. And sometimes we hear that we must isolate ourselves. तो इसके पीछे क्या फंडा है और कब हमें क्या करना चाहिए? Okay. ग्राउंड से कनेक्टेड रहें और कब हम ग्राउंड से आइसोलेटेड रहें? ठीक है। तो जब आप एक बार बेड पे लेट जाते हैं, लाइक आप उस स्टेज में नहीं रहते जहां अपने आप को हील कर पाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स को, जो यूनिवर्स के गॉड है, उनको इमेजिन करना है, उनको याद करनी है कि मैं लाचार हूँ। जैसे हम कोई प्रेयर्स करते हैं और प्रेयर्स में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, वी लाइक डोंट नो द एग्जैक्ट द प्रोसेस, तो उसमें एक मंत्र होता है जो हम बोलते हैं, न जनामी पूजा न जनामी। तो इस टाइप से जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस स्टेज पे, तो रिसीविंग शुरू हो जाती है।
जब तक आप कॉन्शियस स्टेज में हो, एटलीस्ट आप कनेक्टेड रहो यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपसे कुछ नहीं चाहती है, यूनिवर्स आपसे यही चाहती है कि आप अपनी सेवा करें और आपकी क्षमता के अनुसार जिस किसी की भी आपको मौका मिले उनकी सेवा करें। ट्राई टू गिव समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव समथिंग। तो हमारे पास देने के लिए है क्या? इंसान के पास देने के लिए कुछ नहीं है सर। ट्रस्ट मी, ओनली वी ऑल कैन प्रे। हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम किसी को कुछ दे पाए। देना होता तो ये त्राही त्राही जो हो रही है, सबसे पहले तो उठ के मैं चैरिटी करता। But yes, we can give them a hope. We can motivate them. We can pray for them. तो जब आप बेड पे होते हैं, अनकॉन्शियस स्टेज में होते हैं, या किसी भी स्टेज में जरा सा भी आपको ध्यान आए, उस समय में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को, अपने गुरु को, उनको ध्यान कर लीजिए, उनकी ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप ट्रस्ट मी, दिस इज मिरेकली, लाइक पीपल हैव एक्सपीरियंस पर्सनली कि नहीं ये काम करता है। इसको टेलीपैथी कहते हैं। कनेक्टिविटी हो जाती है। यहाँ कोई नंबर डायल नहीं करना होता, विदाउट नंबर वाईफाई है सीधा, और कोई पैसे भी नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई स्पीड। जी वंडरफुल अमित जी, वंडरफुल। नेहा और अमित जी, आप दोनों आज आए हैं। मैं पीपल हैव एनी क्वेश्चन दे कैन पुट टू, बट आई मस्ट से जब आप ये करा देते हैं तो ऐसा लगता है देयर आर नो क्वेश्चंस। इट इज ओनली अ कनेक्टिविटी विद द हाईएस्ट और विद द डिवाइन और विद द गॉड, एंड व्हिच अल्टीमेटली गिव्स द व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज द पीस ऑफ माइंड, peace of mind as well as peace of the body. And I think you are the right channels, if I can say. Thank you so and much. You are able and capable to get us connected with the divine. Thank you so much. I'm so grateful to both of you coming and very short notice sometimes. Amit ji and Neha also, I know that I gave a short notice, and Neha, this is the second time you have come. Amit ji, I'm hoping both of you, if you could come next time. Sure, definitely. Can seeing your convenience, seeing your convenience. We'll keep adding the people, and I'm getting messages on the even on the Facebook Live also. They are feeling very graceful, and they express their gratitude to you. Thank you so much. If anybody has discomfort, ask them to share their photographs. Within a minute, they will feel comfortable, and their pain will be eased within minutes. 30 सेकेंड नॉर्मली इट टेक्स, बट मैं ट्राई करूंगा कि उनको 1 मिनट के अंदर कुछ उनको फील हो एनर्जी को। मैं चाहूंगा कि वो अपने चेहरे पे खाली स्माइल बना के रखें, और जितना मौका मिले दूसरों की मदद करें। जो नेचर से चीज मिली है हम बांटते हैं, सुनते आए हैं ना, राइट सुमित जी? जो नेचर से चीजें मिली हैं, जैसे पानी किसी को पिलाना पुण्य का काम होता है, तो दुआ भी देना पुण्य का काम होता है, ब्लेसिंग्स भी। आई एम हियर टू गिव अ ब्लेसिंग्स टू द एंटायर पीपल, दोज हु आर सफरिंग नाउअडेज। Thank we you. Can't reach. Neha ji, we have a very senior person with us, Jevin Jain, who is known for the Bhaktamar healing, and thousands of people he got recovered. Jain Saab, would you want to say anything to our attendees and our healers? They are wonderful healers. You are also and happy to see you here, first of all, and thanks. नमस्कार अमित जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। Yes, please. अभी इस वक्त क्या हो रहा है, इतना कोविड का क्या इंजेक्शन, पहली डोज लेनी है, दूसरी डोज लेनी है, हर एक के दिमाग में आ रहा है कि मुझे कोविड से बचना है, इंजेक्शन लेना है, तो अननेसेसरी वो फियर क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। ये क्वेश्चन जेविन सर मेरा दोनों हीलर्स के लिए है, नेहा के लिए भी है, अमित के लिए भी। ओके, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पहले नेहा जी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा पहले नेहा जी इस क्वेश्चंस का आंसर दे दें, फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। Yeah, how to avoid these kind of pressures of 2 महीने हो गए, हमारा तो नंबर नहीं आया, we got delayed, we may get infection and all these botherations are keep coming in the mind of the people. आपने जब कराया सेशन तब बहुत बढ़िया, the moment we come out of it again, all those news and all things start. Neha, up to you, over to you. So मेरा सजेशन यही रहेगा कि ठीक है, हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप विश्वास रखें कि सही टाइम पे आपको डोज मिल जाएगा। तो हम लोग जिस तरह के अपने विचार रखते हैं, तो अगर यही सब सोचेंगे कि अरे नहीं मिला तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, जिसको वैक्सीन नहीं हो रहा है उसका डेथ हो रहा है, ये सब विचार लाने के बजाय थोड़ा सा यूनिवर्स पर भी फेथ रखिए, और मन में यही एक फेथ
काम करता है, और विश्वास रखिए कि जो चीज सही समय पे होनी वो हो जाएगी। कुछ चीजें जो नहीं हो मिल पा रही है हमको, और अगर हम लोग उसे बहुत पुश करते हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं बस चाहिए, और उसके पीछे भागते हैं, उतनी वो चीज हमारे से और दूर भागने। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हाँ जो चीजें आपके हाथ में वो जरूर से करिए, आपका रजिस्ट्रेशन कराइए, आप फॉलो अप करिए। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़े रहेंगे या स्ट्रेस होते रहेंगे या मन में विचार बनाते रहेंगे कि हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तब हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आपको जो स्टेप्स लेनी चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करना चाहिए, वो करिए, और मन में एक विश्वास रखिए कि सही टाइम पे सही जगह पर ये हो जाएगा। जब जो होना है वो हो जाएगा, तो पॉजिटिव रहना है। Yes. Very well said. जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं कहूँगा ये इंटरनेशनल बहुत बड़ी ब्रांड है, और ब्रांड का इम्पैक्ट आता है ह्यूमन बीइंग पे, इंसान पे। जैसे अगर मैं कहूँ ठंडा बोले तो, एक जो एड आई थी ठंडा बोले तो, सबके मन में ना सबसे पहला वर्ड आ जाता है कोको कोला। डर के आगे जीत है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बोलो चाइना बोले तो कोरोना आ रहा है आजकल माइंड में। तो ये चीजें इतनी इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांडिंग हुई है, जिसका इम्पैक्ट है ये। नादर हम कल मरने वाले हैं, और ना ही ये वैक्सीन हमें जिंदा करने वाली है। अगर कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी या कोई भी मेडिकल फील्ड से हमें ये बता दे कि वैक्सीन लगने के बाद आप 75 साल तक जियोगे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू die for that vaccines. First of all, you keep in a mind, it is for your life, not for the death, and you're not going to die today. बहुत बढ़िया अमित जी, मैं अभी इसी पे एक बात कहना चाहूंगा। Yes, please. अपने आप में अगर पूरा कॉन्फिडेंस है और भगवान पे विश्वास है, yes, कोई भी आपकी लाइफ एक सेकंड कम कर नहीं सकता, मतलब बढ़ा नहीं सकता। मेरी लाइफ जितनी लिखी है उससे तो मैं बढ़ा नहीं सकता। जब मेरी लाइफ लिखी हुई है तो मैं क्यों सर सॉरी इंटरप्ट करूंगा सर सॉरी गुस्ताखी माफ, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा। दरअसल लाइफ को हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, प्रेयर्स के द्वारा हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर 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 किसी व्यक्ति ने साधना की है तो मृत्यु पे भी विजय पा सकता है। ब्लेसिंग्स का कौन देगा? इंसान नहीं दे सकता, या मेडिसिन नहीं दे सकता, वो यूनिवर्स दे सकता है। बहुत बड़ी बात अमित जी खुले मन से कह रहे हैं। और जेविन सर और सॉरी आप गो अहेड, मतलब मैं माफी चाहता हूँ, पहले बोल दिया, मैं माफी चाहता हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है उतनी मैं शेयर करूंगा। मेरा एक कहने का है जी, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हम अपनी लाइफ एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। महावीर स्वामी भी एक सेकंड अपनी लाइफ नहीं बढ़ा पाए। तो हम अपनी लाइफ जब बढ़ा नहीं सकते तो हम क्यों डरे? हमें अपने विश्वास पे, अपने भगवान पे इतना विश्वास होना चाहिए कि जो हमें जितनी जिंदगी मिली होती हम जिएंगे। तो हम ये फियर क्यों लाए? कोरोना है, वैक्सीन लगाना है, ये करना है। मैं आज तक गया नहीं, और मैंने अभी किसी बच्चे को या किसी फैमिली मेंबर को कहा नहीं कि मत जाओ, पर अभी तक कोई भी नहीं गया, किसी ने नहीं लगवाई, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये बहुत सही बात कहा आपने कि फियर जो है ना, फियर के कारण ये हो रही है। आप समझो कि जहां आपके मन में डर आ गया तो कहानी खत्म। मतलब ट्रस्ट नहीं है कहीं ना कहीं आपको, ना तो आपके ऊपर है ना ही यूनिवर्स पे है। बचपन से लेके आज तक सारी चीजें यूनिवर्स ने अरेंज की है। आप क्या किए हो बताओ? इंसान ने क्या किया? कोई भी एक चीज बता दे इंसान ने किया है तो मैं मान जाऊं। सारी चीज यूनिवर्स करता है, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट जो नहीं करना चाहते वो तो कर लो, कोशिश, समय निकालना, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी, रिस्पेक्ट देना। पॉजिटिविटी का तो बहुत हाईएस्ट लेवल है, एंड आई अप्रिशिएट this kind of positivity can only keep you alive during this stressful time. Yes. I convey my gratitude from the Occult Healers team to all our guests, particularly Amit ji and Neha ji, हमारे सीनियर मेंबर जेविन जैन सर जिनकी ब्लेसिंग्स हम पे हमेशा रही हैं, and all the attendees, all Facebook people who are seeing this and they have been benefited by this. जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चिराग बुझते नहीं अब हवाओं के सामने। ये आत्मा वाले चिराग हैं अमित जी। वाओ। चिराग बुझते नहीं अब हवाओं के सामने, हौसले रुकते नहीं अब सजाओं के सामने, और होंगे वो सरपरस्त जहां के मगर हम भी झुकते नहीं नकली खुदाओं के सामने। बहुत बढ़िया हुआ है
वेरी नाइस, मुझे वेरी नाइस। मुझे इंस्पिरेशन मिला यहाँ आके, बहुत खुशी हुई, खास करके जैन साहब का जो वो एक एनर्जी लेवल देख रहा हूँ मैं, एक बिलीफ सिस्टम देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस एज में भी उन्होंने, डरना किससे है? मृत्यु से, जीवन से डरो। करते क्या हो? कर्म। वो कर्म ही तो भुगतना पड़ेगा इस जन्म में तो किसी न किसी जन्म में। तो मृत्यु तो प्योर चीज है, सच्चाई है, आपने मुक्ति पाली, उससे प्योर हो ही नहीं सकती कुछ। मैं एक और बात कहूँ, यस प्लीज। जहाँ बहुत एसेंशियल है कि मुझे मास्क लगाना है, वहां मैं लगाता हूँ कि जहाँ आप गए हो और वहां बिना उसके आप जा नहीं सकते, नहीं लगाना चाहिए, वहां लगाना जरूरी है। बाकी नहीं हर जगह लगाना जरूरी मैं नहीं लगाता हूँ। जहाँ बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ तो बिना लगाए काम चलेगा ही नहीं, वहां लगाता हूँ। बाकी अपने ईश्वर पे, अपने आप पे भरोसा, नहीं, पूरा ठीक विल है, पावर ठीक है, ठीक है सर। ईश्वर टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, जहाँ लगानी है वहाँ सिचुएशन कंपलसरी कर देंगे। अब बैंक में जाते हैं, वहां तो घुसते ही पहले बोलते हैं कि मास्क लगाओ, तो वो जरूरी है, वो लगाना। जैनिज्म से मास्क सिस्टम आया है, मैं कहूँ कि भारत से ही इजाद है, और बड़ा सोच समझ के हाँ बिल्कुल, जैन धर्म का अपना उन लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सभी का, अमित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, केविन सर और अटेंडीज सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अकल्ट हीलर्स का ये प्रोग्राम हमारा था हीलिंग सेशन लाइव तो कोरोना पेशेंट एंड जनरल पब्लिक। 17 मई को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, वही टाइम 8 बजे। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, कोरोना के पेशेंट जनरल पब्लिक भी अटेंड कर सकते हैं। ये हीलिंग सेशन ईश्वर के भेजे हुए इन पैगंबर, मैं कहूंगा उनके जो गॉडली मैसेंजर उनकी तरफ से होता है, अमित जी, जयविंद सर, नेहा जी जैसे के द्वारा, अकल हीलर्स की टीम और सारे अटेंडीज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for every soul who has attended this workshop. If I did any mistake, forgive me. माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत कहा या आपको मेरी कही गई कोई बात आपको बुरी लगी, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मिच्छामी दुक्कड़म। आप दोनों ने बहुत अच्छा, अमित जी और हमारे नेहा जी ने बहुत अच्छा हीलिंग दिया हम सबको, और सबको अच्छा लगा, कईयों के मैसेज भी हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप लोग बता रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू।